Assalamu alaikum dear students, and hi, I am Asrar Pathan from Rais Junior College Bhiwandi, and I welcome you to E-English Language Learning channel. Today we are going to study our first poem, that is 2.1, Song of the Open Road. We will take into account some information about the poet and the poem. हम लोग इसमें पोएट के बारे में और पोएम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे. Then we will try to understand the poem. After that, we will study the poetic devices that are used in this poem. Then comes the number of the theme of the poem. We'll try to understand the theme of the poem. And last but not the least, we'll get to know the summary of the poem. So come to the first point, and let's take some basic information about the poet, that is Walt Whitman. Walt Whitman is a well-known American poet and essayist. Walt Whitman एक मशहूर अमेरिकन पोएट और एसेइस्ट है. Song of the Open Road is an inspirational poem from one of his most influential poetry of text, Lewis of Grass. A Song of the Open Road ये एक तरगीबी पोएम है, नज़्म है, जो उनके मजमूए कलाम, बहुत ही पुरअसर मजमूए कलाम है जिसका नाम लीव्स ऑफ ग्रास है, उससे ली गई है. Song of the Open Road is a beautiful blend of self-awareness, free will, and tenderness of heart. Song of the Open Road ये पोएम नंबर 1 खुद आगाही, नंबर 2 आज़ाद चाह और नंबर 3 नरमी दिल का एक बेहतरीन आमजिश या मुरक्कब है. It gives us the poet's realization that along the journey of life, one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. In this poem, the poet has used road symbolically. इस पोएम में पोएट के इस एहसास को सामने लाया गया है कि जिंदगी के सफर में इंसान को टेस्ट ऑफ विजडम भी देना पड़ता है, अपनी जहानत का इम्तिहान भी देना पड़ता है, और ये ऐसा इम्तिहान है जो न कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, कोई कंडक्ट नहीं करता एग्जाम. इन दिस पोएम पोएट ने रोड का इस्तेमाल ये सिंबलिकली किया है, अलामती तौर पर रोड को इस्तेमाल किया गया है. द रोड फोर्सेस all levels of people, whether rich or poor, to associate with one another. रोड एक ऐसी चीज है जिसकी मालदारों को भी जरूरत होती है, गरीबों को भी जरूरत होती है, और रोड के जरिए से लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ताल्लुकात, कॉन्टैक्ट्स, एसोसिएशन पैदा होते हैं. The road signifies mobility. रोड जो है वो जिंदगी के चलने की तरफ इशारा करता है, वो गतिशीलता की तरफ इशारा करता है, वो हरकत की तरफ इशारा करता है. One can take the road as a point to start over towards something new. इंसान को कुछ नई शुरुआत करनी हो तो वो नई शुरुआत के लिए सफर भी कर सकता है. In this poem, Whitman talks about the people and places. ये जो पोएम है
यहाँ विटमन ने लोगों का तस्करा किया है, इसी तरह से मकामात का तस्करा किया है, जगहों का तस्करा किया है। He argues against staying in one place for too long despite hospitality. उसने इस के खिलाफ बहुत बहस की है कि इंसान का एक मकाम पर कितना भी आओ भगत किया जाए या कितनी भी उसकी खातिर व मदारात की जाए या कितना ही उसकी मेहमान नवाजी की जाए, उसे उस मकाम पर ज़्यादा नहीं ठहरना चाहिए। So let's come to the poem. Let's read it. आइए स्टूडेंट्स हम हमारी जो पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड उसके टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me leading wherever I choose. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content, I travel the open road. The earth, that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Still here, I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will feel them in return. So this is the poem before us, dear students. ये जो पोएम हम लोगों को दी गई है, इसका ये पूरा के पूरा टेक्स्ट हम लोगों के सामने है। Come to the next point then. So the first stanza is before us. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. ये फर्स्ट स्टैंजा है। पोएट ये कह रहा है कि वो खुली राह पर चल पड़ा है और वो पैदल सफ़र कर रहा है, वो लाइट हार्टेड, वो हैप्पी, वो खुश है, वो हेल्दी, सेहतमंद है, वो फ्री, आज़ाद है, पूरी दुनिया उसके सामने है। द वर्ल्ड इज़ बिफोर हिम, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग वेरेवर आई चूज। उसके सामने जो रास्ता है तो वो अपनी मंजिल तय कर सकता है। रास्ता कैसा भी हो, कच्चा हो, पक्का हो, लेकिन मंजिल वो तय करेगा। फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा वी आर एबल टू ग्लीन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला जो स्टैंजा हम लोगों के सामने है, इसके जरिए से इससे हमें बहुत ही अहम मालूमात हासिल होती है। नंबर 1, the poet is setting out on the open road on foot. पहली बात तो हमें ये मालूम होती है कि पोएट ये खुली राह के सफ़र पर निकल पड़ा है, वो भी पैदल। The open road and on foot. ओपन रोड है और पैदल है, ये एक चीज़ हमें मालूम हो रही है यहाँ। नंबर 2, he is light-hearted and open to all he is about to experience. पोएट बहुत ही खुश है
और सफर के दौरान जो भी तजुर्बात उसे हासिल होने वाले हैं, उसको हासिल करने के लिए, उनका तजर्बा लेने के लिए वो तैयार है। तीसरी चीज, द स्पीकर रिकॉग्नाइजेस दैट इट इज ही हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिज जर्नी। पोइट को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उसका सफर उसके कंट्रोल में है। He will choose where the path will take him on his journey. उसके सामने रास्ता जरूर है और खुला रास्ता है, खुली राह है, लेकिन रास्ता उसकी रहबरी नहीं करेगा, गाइड नहीं करेगा, उसको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसका अपना डेस्टिनेशन रहेगा, उसकी अपनी चॉइस रहेंगी कि वो जो रास्ते पर चलना चाहेगा वो रास्ते पर जाएगा, जो मंजिल वो तय करेगा वो मंजिल तक वो रास्ता उसे लेकर जाएगा। ऐसा नहीं कि एक रास्ते पर वो चल रहा है और वो रास्ता उसे जहां चाहे वहां पहुंचा दे, बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि वो ये कह रहा है wherever I choose, जहां मैं जाना चाहूंगा रास्ता वहां लेकर जाएगा, तो उसकी अपनी एक मंजिल है। Now come to the second stanza. Second stanza हमारे सामने है। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content, I travel the open road. अब ये सेकंड स्टैंजा हमारे सामने है। ये सेकंड स्टैंजा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट ही डज नॉट हैव टू प्रे फॉर गुड लक बिकॉज ही इज ऑलरेडी लकी एंड ही इज केयरफ्री एंड चीयरफुल। तो साफ साफ बात ये करता है वो पोएट कि मुझे खुशनसीबी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं पहले से ही लकी हूँ, खुशनसीब हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं खुश हूँ। मुझे गुड फॉर्चून, मुझे लक मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं लकी हूँ, मैं फॉर्चुनेट हूँ। और बात क्या मालूम पड़ती है हमें यहाँ? He will no longer cry or hesitate to do what he wants because he is in need of nothing. क्या कह रहा है वो? I whimper no more, postpone no more, need nothing. मुझे रोने बिलबिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, जो मुझे करना है उसको करना है, पोस्टपोन करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा काम है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कर सकता हूं। और क्या मालूमात हमें मिलती है? वो ये कह रहा है डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस क्रिटिसिजम्स। देखिए वो ये कह रहा है he has paid much attention to many complaints. शिकायतें वो बहुत सुन चुका है। He has read so much that he is fed up with the bookish knowledge. किताबें इतनी पढ़ चुका है वो लाइब्रेरीज की कि वो किताबी नॉलेज से वो उकता गया है, तंग आ गया है। And he has earned much negative criticisms. और उसने लोगों की तान तशनी भी और तनकीद भी बहुत झेल ली है, बर्दाश्त कर ली है। घर से भी तंग आ गया है, लाइब्रेरी से भी तंग आ गया है, लोगों से भी तंग आ गया है। इसीलिए वो चाहता है कि इन लोगों से नजात मिले, छुटकारा मिले,
चाहे कोई साधन मेरे पास ना रहे, मेरे 2 पैर तो है, तो मैं पैदल ही निकल पड़ूंगा और घर के अलावा, लाइब्रेरी के अलावा और आसपास के माहौल के अलावा जो नॉलेज अभी तक मुझे नहीं मिला है वो सफर के जरिए से हासिल करना चाहता हूं। इसलिए वो ये फील करता है कि मुझे अब जरूरत है बाहर जाने की। इसके लिए वो कहता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कंटेंट, मैं मजबूत इरादे वाला हूं और मैं मुतमईन हूं और मैं सफर कर सकता हूं और सफर के जरिए से अपने नॉलेज में भी इजाफा कर सकता हूं। आइए थर्ड स्टैंजा हमारे सामने है। The earth that is sufficient, I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. अब वो क्या कहना चाह रहा है? In the third stanza, he says that the earth is fine the way it is. इस कायनात में हमारे सामने जो हमारी गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, तो हर एक प्लैनेट का इसमें एक प्लेस है। तो हमारी जमीन का भी एक प्लेस इसमें है। वो ये कहना चाह रहा है कि जमीन जहां है वहीं अच्छी है। इट्स प्लेस इज परफेक्ट, सफिशिएंट। ये उसका प्लेस बिल्कुल सही है, बराबर है। आई डू नॉट वॉन्ट द कंस्टलेशंस एनी नियरर। वो ये भी कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि जो कंस्टलेशंस है और करीब आ जाए, और करीब आ जाए। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। मैं जानता हूं कि अर्थ, ये जो कंस्टलेशंस है, जो स्टार्स है, ये जिन प्लेसेस पर, जिन मकामात पर है वो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। उनको आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है, उनको करीब आने की जरूरत नहीं है। आई नो दिस सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। ये जो स्टार्स है, ये जो प्लैनेट्स है, हाँ, ये एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी कायनात हम लोगों को चलती हुई नजर आती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहा है इस थर्ड स्टैंजा में। इन द थर्ड स्टैंजा ही सेज दैट द अर्थ इज फाइन द वे इट इज। वो ये कहना चाह रहा है कि जमीन जहां है वहीं अच्छी है। और फिर उसने कंस्टलेशंस का लफ्ज लाया है। कंस्टलेशन सितारों का जो झुरमुट होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मैं चाहता हूं कि सितारों का जो झुरमुट है वो जहां है वो वहीं रहे, उसको भी करीब आने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैं जहां हूं वहां बेहतर हूं। आई एम फाइन पर आई एम, मैं जहां हूं वहां बेहतर हूं। ये चीज उसने कही है। जमीन जहां है वो वहां बेहतर है, सितारे जहां है वहां बेहतर है, मैं जहां हूं वहां बेहतर हूं। क्या कहना चाह रहा है? He probably does not include himself in the group of people who belong to the constellations. वो अपने आप को ऐसे लोगों में नहीं रखना चाहता, शुमार करना नहीं चाहता जो इन्फ्लुएंशियल हो, जो बाअसर हो। ऐसे लोगों के ग्रुप में अपने आप को रखना ही नहीं चाहता। वो ये कह रहा है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम फ्री, आई एम हैप्पी, आई एम लाइट हार्टेड। वो ये कह रहा है कि भाई मैं खुद मुख्तार बन गया हूं, आत्मनिर्भर बन गया हूं। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग और उनका ग्रुप क्यों ना हो, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। नीड नथिंग। हाँ, he does not belong to them because he does not need them.
ना ही उनकी ज़रूरत है और ना ही उनको मेरी ज़रूरत है। इस तरह से thus the poet emphasizes his free will and independence। इस तरह से पोइट क्या कर रहा है, हाँ, अपनी आज़ाद चाह की तरफ, सोच की तरफ और अपनी खुद मुख्तारी की तरफ, अपने आत्मनिर्भर होने की तरफ इशारा कर रहा है। So the last stanza, the fourth stanza is before you. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट स्टैंजा जो ब्रैकेट्स में रखा गया है, पैरेंथेसिस में रखा गया है, पोएट इसके जरिए से क्या कन्वे करना चाहते हैं। Here in the last stanza, which is in parenthesis, the poet confesses that he is not without his own problems. पोएट ने लास्ट स्टैंजा में दो टूक अंदाज में ये बात कबूल की है, बेबाकी से इसका इजहार किया है कि इंसान है और इंसान के साथ प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं, वो भी एक इंसान है, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स है। वो कन्फेस कर रहा है, वो कबूल कर रहा है, ही इज नॉट विदाउट हिज ओन प्रॉब्लम्स, कि ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम से बरी है, मुबर्रा है, उसको छुटकारा मिल गया है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम से ज़रा भी डरता नहीं है, घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, टेंशन नहीं लेता है। ही रिलिशेस देम, बल्कि उनसे वो लुत्फ़ अंदोज़ होता है, उनसे वो मज़ा हासिल करता है। उसके जो प्रॉब्लम्स है, बर्डन्स का है, उसने क्या कहा है, बर्डन्स, उसके डेलिशियस बर्डन्स, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने कि मेरे जो प्रॉब्लम्स है, मेरे लिए ये मज़ेदार है, मेरे लिए ये लजीज है, मेरे लिए ये स्वादिष्ट है। फिर और क्या बात मालूम पड़ती है हमें इस लास्ट स्टैंजा में? इन द सेकंड लाइन ऑफ द फाइनल स्टैंजा, the poet admits to all that he carries them with him wherever he goes। एक बात तो उसने ये कबूल की है कि मैं इंसान हूं और इंसान के साथ प्रॉब्लम्स लगे रहते हैं, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स लगे रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉब्लम से मज़ा हासिल करता हूँ, लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ, इंजॉय करता हूँ, उन्हें इंजॉय करता हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ रहते हैं, इनसे छुटकारा मुझे नहीं मिला है। वो ये कह रहा है, आई टेक देम वेर एवर आई गो, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ होते हैं। और फिर वो ये भी कबूल कर रहा है कि आई कैन नॉट रीड माई सेल्फ ऑफ दम, कि मैं प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके बजाय ही एंड हिज बर्डन्स शेयर अ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंटायरली, पूरे तरीके से वो बेहतरीन रिलेशन बन गया है उसमें और उसके प्रॉब्लम्स में। ही इज फिल्ड विद हिज बर्डन्स एंड इन रिटर्न ही फिल्स देम। उसके प्रॉब्लम्स को पोएट की जरूरत है और पोएट को प्रॉब्लम्स की जरूरत है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, रिलायंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का ये फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने पोएट के बारे में, पोएम के बारे में मालूमात हासिल की और पोएम को का एक्सप्लेनेशन भी समझने की कोशिश की।
In the second part of this poem, we'll study free verse, paradox, metaphor, theme and summary of the poem. कुछ पोएटिक डिवाइसेस है, थीम है, समरी है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।